fabulous viewers, and welcome back once again to the tarot reading for the sign of Cancer. Now, this is a general love reading. So, first of all, it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates with you and leave the rest. Don't try to fit in. Secondly, check your sun, moon, rising, or Venus sign. And thirdly, this is from 8th to 18th of March. So, I think I've made everything clear. So, now let's begin with the Cancer people. Here I will tell you your feelings, your intentions, your person's feelings and your person's intentions, and also the guidance the tarot has for you. So now this is for the Cancer people, my love team. So what are the feelings of the Cancer from 8th to 18th of March? How do the Cancers feel? Now this is a new deck, so it's slippery. One last shuffle. Okay. Okay, Cancer, you are at crossroads. You have a major realization. आपको it's an epiphany. आपको कुछ बहुत चीज़ें आपको महसूस हुई. Now what you're feeling is 3 of Wands in the reverse. Now 3 of Wands in the reverse means that आप किसी चीज़ के लिए वेट नहीं कर रहे हैं. आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या आपके सामने चीज़ें बहुत क्लियर हैं और आपको जजमेंट कॉल लेनी है. जजमेंट एट द बॉटम ऑफ द डेक, which means that you have to take a decision. You have to make a decision whether you have to give a second chance or not. So I'll have to clarify what is 3 of Wands is. Now please clarify for Cancer people, my love team. The 3 of Wands in the reverse. What are the Cancer people feeling? What is this 3 of Wands? How are they feeling? Let's clarify the 3 of Wands in the reverse. Bottom of the deck, Queen of Wands. Now these are your cards. You have the 6 of Wands in the reverse, you have the Hermit in the reverse, and you have the Sun. ओके, कैंसर, ऐसा लगता है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ क्लैरिटी आ गई है. बहुत चीज़ें आपको क्लियर है कि आपको अपने ऊपर फोकस, आपको अपनी खुशी पे ध्यान देना है, आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है. और इसी चीज़ को लेकर आप बहुत रेस्टलेस हैं. आपको लगता है कि शायद आपको सक्सेस नहीं मिल रही है. ऑल्दो आपको ये क्लियर है, आपको जजमेंट कॉल लेना, आपको डिसाइड करना है व्हाट यू हैव टू डू एट दिस मोमेंट. और आपको क्या कट आउट करना है लाइफ में. आपको अभी किस चीज़ की यहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं मिल. दिस आई एम नॉट एबल टू टेल दैट व्हाट यू हैव टू कट आउट. लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको अपने जीवन से निकाल फेंकनी है और जिसके कारण आपकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, आपको वो खुशी नहीं मिल पा रही है जिसके आप हकदार हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर पर्सन्स फीलिंग्स, माय लव टीम. व्हाट इज़ द फीलिंग्स ऑफ कैंसेरियंस पर्सन. ओके, आपके पर्सन की एनर्जी है द 5 of Wands in the reverse and the Page of Swords. Page of Swords at the bottom of the deck. ओके कैंसर, आपके जो पार्टनर हैं वो लड़ाई झगड़े से बाहर आ चुके हैं और वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको इस ड्रामा में, इस आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल नहीं पड़ना है. दे डोंट वांट टू एंगेज. वो किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, ड्रामे में नहीं पड़ना चाहते हैं. यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं. फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है. तो यहाँ पर वो भी ये फील कर रहे हैं कि उन्हें आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है या किसी से भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है. एंड वी विल क्लैरिफाई एंड सी. सो प्लीज़ क्लैरिफाई द 5 of Wands फॉर द person of Cancer. What is this 5 of Wands in the reverse for the person of Cancer, my love team? You have the Star in the reverse, the 6 of Wands in the reverse, the Magician upright, the Judgment. You've got so many cards. The Knight of Pentacles in the reverse. So yeah, what they are manifesting, Cancer, वो
लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं वो। सिक्स वो उन्हें लगता है कि इसमें उनको ऐसा फील होता है कि इसमें जो है इस लड़ाई झगड़े में कोई विक्ट्री नहीं है, कोई सक्सेस नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही है। और वो इसीलिए हील नहीं कर पाते हैं। वो इससे उनको स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, और वो कहीं ना कहीं आपको दूर से वॉच कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐसा सकता है कुछ भी वॉच कर रहे हो। सो आई थिंक they are kind of manifesting their success only. So 5 of Wands, they don't want to engage in any kind of argument with you or anybody for that matter. So now let's clarify what are your intentions, what do you want to do next. Cancer, what do you want to do next? What is the intention of Cancer? What do they want to do now next? Okay, you've got the Tower in the reverse, King of Pentacles, and you have a Justice. टावर इन द रिवर्स का मतलब ये है कैंसेरियंस कि आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है, और अब आप कोई आगे चल के कोई भी फर्दर आप कोई भी तमाशा नहीं चाहते, बिकॉज सी टावर इज़ अ कार्ड ऑफ ऑफ ब्रेकअप, ऑफ शॉक। कोई चीज़ बुरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और वो इतनी अपने आप में इतनी कमज़ोर थी कि वो आगे चलने वाला नहीं था, तो ये ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका, आपका रिश्ता हिल चुका है। तो बार बार ये इस तरीके का ड्रामा, इस तरीके का शॉक, इस तरीके का कि आप पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाए, आप इस तरीके का वापस से कोई तमाशा नहीं चाहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आर योर इंटेंशंस, और आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप जस्टिस चाहते हैं। यू हैव द बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस, या यू वांट स्टेबिलिटी। आप बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ रहे वो अपने आप में करेक्ट हो। सो लेट्स क्लैरिफाई व्हाट इज़ दिस टावर। प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर फॉर कैंसर। Please clarify the Tower for Cancer, my love team. Excuse me. You have Three of Pentacles, Eight of Pentacles in the reverse, and you have this, this swords. नाइट ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि कैंसरियंस आप लोग आप कहीं ना कहीं कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो रिलेशनशिप है आप उस पर काम नहीं करना चाहते हैं, या वो वर्कआउट नहीं हो सकती है। आप किसी चीज़ में रश नहीं करना चाहते हैं, आप बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं, और वापस इस ड्रामा में पड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि पहले भी आपको काफ़ी आपको काफ़ी सेटबैक हो चुका है, बहुत ज़्यादा दुख आप दुखी हो चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा सॉरो, या आपकी सिचुएशन बहुत ही पेनफुल रह चुकी है। तो आप फिर से वापस से कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। दैट मीन्स योर इंटेंशंस आर दैट यू डोंट वांट टू रश इनटू एनीथिंग, यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, यू डोंट वांट टू रश इनटू एनीथिंग। आप कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे नहीं करना चाहते। मतलब आप काफ़ी कॉशियस हैं, आप काफ़ी केयरफुल हैं कि आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि फिर से टावर मोमेंट हो, फिर से भयंकर लड़ाई झगड़ा जो आपके बीच में पहले हो चुका है वो ना हो। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ द पर्सन ऑफ कैंसर। What is the intention of the person of Cancer, my love team? What is the intention of the person of Cancer? Okay, the intention of the person of your Cancer is the Ace of Cups. Now this is a love card
ऑफर ऑफ लव, एंड बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द 5 ऑफ कप्स। तो ये किसी चीज़ को लेके काफ़ी रिग्रेटफुल है, पास्ट को लेके रिग्रेटफुल है। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई जिसको लेकर इनको काफ़ी दुख है, काफ़ी रिग्रेट है। बट ये आपको फ्रेंडशिप ऑफर करना चाहते हैं, या आपको शायद आपके इनके दिल में आपके लिए काफ़ी इमोशंस हैं, या ये आपको वापस से, लेकिन ये इनके दिल में ही है, ये इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर स्टिल इन सेपरेशन। सो लेट्स क्लैरिफाई व्हाट इज दिस एज ऑफ कप्स, व्हाट आर दे वांटिंग टू ऑफर टू कैंसर, एज ऑफ कप्स, व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ द पर्सन ऑफ कैंसर। The intentions of the person of the Cancer. These are your cards, Cancer. The 5 of Swords in the reverse, the 10 of Swords in the reverse, and by the King of Pentacles. या ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, और बॉटम ऑफ द डेक इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, पैशनेट है, ये समझते हैं कि आप काफ़ी चार्मिंग हैं, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन है, जेंडर डजेंट मैटर। तो ये जो आप लोगों के बीच में एंडिंग हो चुकी है, काफ़ी हद तक ये उस पेन से निकल चुके हैं, ये कोई भी ईगो टसल नहीं चाहते हैं। और इसमें देर आर 2 सिचुएशंस ऑल्सो। इसमें या तो ये आपके साथ, या आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, या फिर ये अपने ही स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। ये जो एस ऑफ कप्स का मतलब है कि ये इनकी लाइफ में हो सकता है कि कोई नई खुशियाँ आ रही हो काम को लेके, या अपनी फैमिली लाइफ को लेके। तो इसमें दो सिचुएशंस हैं ये, लेकिन इसमें मुझको ये सिचुएशन ज़्यादा लग रही है कि अपने ऊपर ही ये फोकस्ड है, या अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना चाहते हैं, अपने पैसे रुपए पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं। और इनको पहले पास्ट का लेकर के डेफिनेटली दे हैव लॉट ऑफ रिग्रेट्स, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझको ये ज़्यादा लग रहा है कि अपने ऊपर ही अपने इमोशंस पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर द कैंसर पीपल, क्योंकि आप लोगों के बीच में टावर मोमेंट हो चुका है, तो इस रिश्ते की फाउंडेशन बहुत वीक थी। तो ये ये फिर बार बार ये ऐसा नहीं होना, ऐसा ना हो, ऐसा ये चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस फॉर यू, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर द कैंसर पीपल, माय लव टीम। Okay, so the advice for you is 8 of Cups, the King of Cups in the reverse, and the Knight of Wands, with the 2 wands upright. Okay, now this is telling me, Cancer, that Tarot is advising you कि आप emotional instability से वॉक अवे कर जाएँ, निकल जाएँ, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो पर्सन है इसके सामने 8 कप्स है, लेकिन ये इनको छोड़ के किसी दूसरी दिशा में जा रहा है। तो आप अपनी ज़िंदगी में एक नया रास्ता बनाएं, क्योंकि इस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी तो नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं, काफ़ी एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हैं, लेकिन ये बार बार इन एंड आउट रिलेशनशिप में बार बार आते हैं, चले जाते हैं। जब इस पर्सन को ज़रूरत होती है तो देन दे कम टू यू एंड देन दे वॉक अवे। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप इस अनस्टेबल सिचुएशन से बाहर निकलें और किसी स्टेबल सिचुएशन की ओर जाएं जो इमोशनली आपके लिए स्टेबल हो। ये अप एंड डाउन आपके साथ ना हो। ओके, लेट मी गेट अनदर लव ऑरेकल कार्ड फॉर यू, फॉर द पीपल ऑफ कैंसर, फॉर व्हाट इज देयर फॉर द कैंसर पीपल। सोलमेट, your soulmate is already with you in spirit, believe this, and they will manifest physically. So this is, you got the soulmate card, Cancer. Now this is saying कि your soulmate is already with you in spirit, believe this, and they will manifest physically. तो आपके ये soulmate हो सकते हैं, क्योंकि Ace of Cups भी आया है। तो आपके लिए हो सकता है इनके दिल में इमोशंस हो और ये शायद आपको अप्रोच करें। सो यू हैव टू वेट एंड वॉच। द टैरो इज सेइंग दैट यू हैव टू वेट एंड वॉच एंड देन यू टेक अ डिसीजन व्हाट यू हैव टू डू। So this is what I have for you, Cancer people. I hope you liked the reading. So please give a like button if you feel you've got something out of it. Now till then, next time, bye bye.